प्योर एसेट मैनेजमेंट है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि दे हैव फंड्स जिसमें एक रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू SIP एंड ऑल ऑफ दैट। पैसा इकट्ठा हो रहा है, ओके, पैसा आ गया है, नाउ इट्स विद द फंड मैनेजर। Right. तो यहाँ पे मिडिल ऑफिस क्या करता है? When I talk about middle office, it kind of sits within operations as well in some firms, and it sits outside operation also with some firms. Okay. Okay, but it works as a close coordination point between the back office and the front office. देखो, फ्रंट ऑफिस तो वो है जिसके पास पैसा है, और जो फंड Right. मैनेजर इज गोइंग टू डिप्लॉय, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा मार्केट में। तो मिडिल ऑफिस कहाँ सपोर्ट कर रहा है उसको? कि मिडिल ऑफिस इंश्योर करेगा कि आपका सबसे पहले सब टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब कि आपके जो भी ऑपरेशंस में टीम है, आप उनके साथ मिल के एज अ ऑप्स एज अ होल आप इंश्योर करोगे कि फंड के नैम्स एडमिन्स के साथ इन लाइन है, थर्ड पार्टी एडमिन्स के साथ, verify एंड आप कर रहा है। साइन ऑफ एग्जैक्टली। जो जिस तरीके से डेट, अभी हम डेट के बारे में थोड़ा Right. बात करें, क्या क्या टाइप ऑफ डेट है उसका, कल एक एग्जांपल आप दे सकते हैं? वी हैव रिवॉल्विंग क्रेडिट ऑल्सो। रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड लोन जैसा होता है, जैसे आप ड्रॉ करते रहते वैसा। तो यहाँ पे मिडिल ऑफिस लिक्विडिटी भी देख रहा है, रिकंसिलिएशन भी देखता है, स्ट्रक्चरिंग भी देख रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Part of middle office, we ensure that we are understanding what is going on and how that particular deal is structured. नाउ फॉर द ऑडियंस जो शायद अपना करियर बनाना चाहती है इन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस एंड ऑल ऑफ दैट, तो व्हाट की स्किल सेट्स यू नीड टू सक्सीड? Hello friends, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students who are preparing for competitive exams like CFF, RMC, AIA. And today, as a part of that discussion journey, we also talk to people from the industry. And today I have with me Meghna Bhatt, with around 10 years of experience into the investment banking and the asset management space. We're going to be talking about what is happening in industry, what are the different roles, and what it takes to make a good finance career. Okay. So Meghna, first of all, thank you very much for taking out time. And we want to understand your journey first, and then we'll have a quick discussion. Sure, definitely. Thank you, sir, for having me on the board. Before I begin, I just want to give out a disclaimer to the viewers that Right. I'm here to share my journey with the sir, with intelligence, honestly. And whatever I say need not be associated with any organization. These are purely my perspective. Sure. So to move on, I started with investment banking career at Barclays. Mhm. When I was part of Barclays, I was part of collateral management and Okay. portfolio reconciliation. Hmm. This is a very good start, in terms of career. If someone wants to start, they should have go into basic portfolio reconciliation, because at that time you understand different products in terms of OTC derivatives, Okay. or how you manage collateral, and then you kind of connect with the desk or different teams in the firm, and then you move forward. So Right. while I was at Barclays, it was a good journey. Post that, I got into Credit Suisse. Now in Credit Suisse, I was part of Prime Services stock borrow lending team. Now Okay. being part of that, this was a new role for me, honestly, because I had to directly work with the trading desk in here. Now when Okay. you're working with trading desk and when you're coordinating with different teams around, it becomes a bit of pressure plus challenging in terms of you always have to be on your toes, Okay. and आपको हमेशा आपकी hot seat पे बैठना पड़ता है. Okay. So when you're working with the desk, you will understand the level of pressure that they go through and the level of expectations that you meet. So eventually you know that how you have to manage your day to day. Correct. So that is what I learned actually in my career in Credit Suisse. Now that was kind of a trade support sort of role. So this was all into investment banking. When I was in Barclays, when I was in Credit Suisse, this is all an investment banking career. Yes. Now, coming to asset management, when I joined JP, honestly, I was of the understanding that since this is a trade support role and a process migration, this is gonna be a similar sort of role into investment banking. Okay. But to my surprise, there unfolded a new chapter in my life that was a asset management business. Now, honestly, when I saw asset management, I was like, okay, mutual funds, is it? So ये हम usually associate करते हैं, क्योंकि mutual fund तो हम सबको पता है कि कैसे work करता है. So but this is much more. There are much more things that these large investment banking do. Right. And this was their internal asset management that they were having with themselves, and it's kind of learning experience in there, because I got to
got an opportunity wherein I could like work with directly with the portfolio managers. Being a small asset management inside JP, I got an opportunity working directly with the portfolio managers. Plus, because this was a process migration, I Okay. got an opportunity to visit London with my colleague, and then we more understood how the entire system Chalo. works end to end. Now, usually, if I talk about the middle office or a operation function into the asset management business, it's kind of bifurcated. Now, when I say bifurcated, there are different teams doing different jobs. You know, Right. in a larger asset management business, like someone is there for onboarding, someone is doing reconciliation, settlements, and everything. Okay. But then, like being part of the smaller group, I got to do everything, and that is Okay. how I think that played out a very crucial role. Plus, it was manual. So when Okay. you're doing Okay. something manually, you kind of understand more better. So, and plus, like working with different colleagues, so I think like that gave me a very very strong base while working at the asset management firm. Okay. Now, this was purely into bond and equities. When I moved on to Apollo, this is another broadened horizon of the asset management business, which is alternative investments. Now, when I talk about alternative investments, this is like not your usual bond and equity investment. There are so many different funds in the market, जैसे कि real estate fund हो गए, insurance funds हो गए हमारे, private equities हो गए. So these are the different types of funds that a firm has, and then they kind of like have their investment, they lend money or they make Okay. money in that way. So I think like being part of Apollo so far has been a great learning experience for me into the alternative market. And I think like this market is so big and growing. I know that it is like quite extensive in the West, but Okay. Asia is going to be there soon, and I'm sure like India is also going to be there soon. Okay. So from that perspective, I think like it's a good learning experience for someone who wants to get into alternative. ओके सो अभी जस्ट ऑडियंस के लिए हम दो बाइफर्केशन करते हैं. Right. एक तो दोनों जगह पे मिडिल ऑफिस में आपने काम किया, तो मिडिल ऑफिस इन एन प्योर एसेट मैनेजमेंट फर्म, नेक्स्ट है मिडिल ऑफिस इन एन ऑल्टरनेटिव वाला एसेट मैनेजमेंट. सो पहले वाले पे आते हैं. जो प्योर एसेट मैनेजमेंट है वहाँ पे क्या हो रहा है कि दे हैव फंड्स जिसमें एक रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू SIP एंड ऑल ऑफ दैट. पैसा इकट्ठा हो रहा है, ओके, पैसा आ गया, नाउ इट्स विद द फंड मैनेजर. Right. तो यहाँ पे मिडिल ऑफिस क्या करता है, मतलब कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? So middle office ka basically, when I talk about middle office, it kind of sits within operations as well in some firms, and it sits outside operation also with some firms. Okay. Okay, but it works as a close coordination point between the back office and the front office. Okay. So आप हमेशा सेंटर में रहते हो. तो when being part of middle office, अगर मैं normal asset management business की बात करूँ, तो वहाँ पे मेरा कोई bifurcation हमें थी middle office में, but I also had to do the back office work, plus I had to also coordinate with the front office also. So Okay. it kind of sits in between in that बट अगर case. कुछ एक्टिविटी टाइप्स में हम बात करें हाँ हाँ कि देखो फ्रंट ऑफिस तो वो है जिसके पास पैसा है और जो फंड Right. मैनेजर इज गोइंग टू डिप्लॉय, वो Right. पैसा इन्वेस्ट करेगा मार्केट के अंदर. तो मिडिल ऑफिस कहाँ सपोर्ट कर रहा है उसको? middle office, honestly, see, like equity portion that I worked upon, there was really no bifurcation. But if I talk about my current role into the middle office function, there is a clear bifurcation, as in कि middle office ensure करेगा कि आपका सबसे पहले सब टीम्स के साथ coordination होगा. मतलब कि आपके जो भी operations में टीम है, आप उनके साथ मिल के as a ops as a whole आप ensure करोगे कि फंड के NAVs एडमिन्स के साथ इन लाइन है, थर्ड पार्टी एडमिन्स के साथ, एंड आप साइन ऑफ एग्जैक्टली ओके. जो एक्चुअली बुक ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, आपके नैव्स इन लाइन है, देन आप साइन ऑफ करोगे. ये पार्ट 1 हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो भी फंड्स होते हैं उनकी लिक्विडिटी मैनेज करना इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द मिडिल ऑफिस पर्सन. बिकॉज आपको समझो कि मैं एक फंड ओनर हूँ, ठीक है. देयर आर डिफरेंट पीपल, यू हैव फंड कंट्रोलर्स एज वेल, जो फंड के मतलब फंड के फाइनेंसेस मैनेज करते हैं. वी कॉल देम फाइनेंस टीम. फंड कंट्रोलर्स होते हैं, वो फंड के फाइनेंस मैनेज करते हैं. देन यू हैव द डील टीम, जो आपके लिए डील्स लेके आते हैं. नहीं, बट नहीं, जो हम बात कर रहे हैं प्योर एसेट मैनेजमेंट, राइट, ऑल्टरनेटिव की बात नहीं. ऑल्टरनेटिव की बात नहीं कर रहे. हाँ, तो जब हम एसेट मैनेजमेंट में हैं, तो फंड मैनेजर डिसाइड करे कि लेट अस अज्यूम कि मुझे सर्टेन पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है. राइट. तो फंड मैनेजर से आप यहाँ पे आ रहे हो कि क्या हमारे पास उतना कैश अवेलेबल है? राइट. राइट.
वो Okay. चीज में हम आएंगे. और एंड देन साइन ऑफ. सो लाइक क्लोजिंग Okay. पर्सपेक्टिव से फंड का क्लोजिंग मंथ. सो डिपेंडिंग अपॉन उनका नैव का कट ऑफ्स क्या है. फॉर एग्जांपल उनका मंथली नैव है, उनका क्वार्टरली नैव है, उनका डेली नैव है. अगर पब्लिक Okay. फंड है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फंड, फिर उसका कोऑर्डिनेशन करके उनके कैश ब्रेक्स क्लियर करवाना, मतलब डिफरेंट टीम्स के साथ लाइस करके. एंड देन क्लोज कोऑर्डिनेटेड रहना एडमिन्स के साथ भी, ताकि उनके क्वेरीज भी एड्रेस हो जाए, हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वर्सेस उनका मैच हो जाए. सो एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट रिकंसिलिएशन, it's honestly like people say, like operation and reconciliation is like, oh, what, you just doing a recon. Like, it's not that, because reconciliation actually requires deep and thorough investigation of things. Like, Okay. it is very important part of the business, but sometimes like, like we take it for granted, honestly. Like, Okay. people who are doing their job like very genuinely and very diligently. Now when I talk about the sign off part, like when I say that, it means that ये reconciliation कैसा होता है ना, हमेशा 3-way reconciliation होता है. ठीक है. when I talk about 3-way reconciliation, कोई भी asset management firm हो या एसेट मैनेजमेंट फर्म हो, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम रिकंसिलिएशन करेंगे कस्टडी के साथ. सो फॉर एग्जांपल मैं एसेट मैनेजमेंट फर्म हूँ, मेरे कस्टडी के साथ भी रिकंसिलिएशन होगा, मेरा एडमिन्स के बुक ऑफ रिकॉर्ड के भी साथ रिकंसिलिएशन होगा, एडमिन्स भी कस्टडी के साथ रिकंसाइल करेगा. कस्टडी क्या है? मेरा बैंक है, बैंक जिसके पास पैसा पड़ा है. हाँ, पैसा पड़ा है, मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो कस्टडी में हुआ है ना. राइट राइट. तो हमें मैच करना है. प्लस अगर हमारे कुछ डिफरेंट लोन्स है या फिर हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे अक्रूवल्स कितने होने चाहिए पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे, हमको फ्यूचर में कितना पैसा आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड के कूपन का कितना अक्रूवल होना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मिडिल ऑफिस वो सब चीजों पे साइन ऑफ करवाते हैं फ्रॉम ऑप्स पर्सपेक्टिव. सब ठीक है. एग्जैक्टली. ओके. यहाँ पे जो कस्टोडियन हम बात कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ओनली जस्ट द फंड्स बट असेट ऑल्सो. वो लोग असेट, जैसे बॉन्ड मैंने खरीद के रखा है, राइट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं प्रॉपर, कितने बॉन्ड्स मैंने लिए हैं, कितना इंटरेस्ट आने वाला है, सब कुछ वो कस्टडी को पता है. राइट. और उनके रिकॉर्ड्स में सेट हो रहा है. कस्टडी को पता है, मतलब ऐसे कि कस्टडी में तो पैसे आते हैं. कस्टडी को हम समझ लेंगे कि एक बैंक है. ठीक है. मतलब मेरी बैंक है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका, फॉर एग्जांपल फंड का अकाउंट है, मेरे फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं ना एट द एंड, तो मेरे फंड का अकाउंट है. ठीक है. तो उसमें पैसे आने वाले हैं, बट वो कितने आने वाले, क्या आने वाले, उसका अक्रूवल्स का पैसा मैं करूंगी इंडिपेंडेंटली एंड मेरे एडमिन्स भी करेंगे इंडिपेंडेंटली. इसके सबके नोटिसेस होते हैं अगर नॉन बॉन्ड हुआ तो. एंड अगर बॉन्ड हुआ तो हमको पता है कि कितना इंटरेस्ट, लाइक मार्केट में डिटेल्स अवेलेबल होती है. तो एक एग्जांपल लेके जस्ट फॉर द ऑडियंस, कि सपोज एक फंड ने इन्वेस्ट किया एक बॉन्ड में, जिसके कुछ सपोज $10 मिलियन का इंटरेस्ट आने वाला है. ओके. ये आपको पता है. राइट. आप बोल रहे हो कि 3 दिन के बाद ये बैंक को हिट होगा, तो आप चेक करो कि बैंक में हिट हुआ कि नहीं. राइट. करेक्ट. उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट, जो आपने बोला, जो एडमिन टीम है, ये थर्ड पार्टी ऑडिटर्स हैं या फिर वेरीफायर है, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है वो. हाँ, थर्ड पार्टी है. वो लोग नैव रिलीज करते हैं. अग्रीड. बट ये इन्वेस्टर्स को अलग से कंपनी है. दिस इज राइट. दे आर सेपरेट. ये बेसिकली आ रही है बिकॉज जो इन्वेस्टर्स, उनको कंफर्ट होना चाहिए कि सब कुछ करेक्ट है. एग्जैक्टली. हाँ. तो वो लोग अपना एंड से बैंक्स के साथ वेरीफाई कर रहे हैं, और आपसे भी वेरीफाई करवा रहे हैं कि हाँ सब सही चल रहा है. उनकी खुद की भी कैलकुलेशन टीम होती है, मतलब उनकी खुद की भी मिडिल ऑफिस होती है, उनकी खुद की भी, मतलब लाइक नैव्स जो भी कैलकुलेट करते हैं, पीएनएल साइड जो भी करते हैं वो भी होती है. सो मैं तो ये ऑप्स पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, बट मेरी फाइनेंस टीम लाइक दे लुक एट अ लॉट मोर ब्रॉडर पिक्चर एज वेल, लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि कितना मेरे फंड का मैनेजमेंट फीस जाने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, ये आने वाला है, सॉरी, लाइक इफ आई हैव इन्वेस्टर्स इन, कितना मैनेजमेंट फीस आने वाला है, मेरे क्या क्या डिफरेंट अदर फीस है फंड मेंटेनेंस के, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो ऑल दोस थिंग्स आर लुक्ड बाय फाइनेंस एज अ होल. और जो रिपोर्ट जाती है इन्वेस्टर को, वो आप भी भेजोगे और ये भी इंडिपेंडेंट जो है वो भी भेजोगे? नहीं. सो हमारे पास से साइन ऑफ होके फिर वो भेज देते हैं. हमारे कंट्रोलर्स जो होते हैं वो साइन ऑफ करेंगे एट द एंड कि दिस इज हाउ, लाइक इट्स गोना बी, लाइक इट लुक्स ओके, आवर नंबर्स आर इन लाइन, आवर सिस्टम वर्सेस योर सिस्टम, एंड वी काइंड ऑफ अग्री. और फॉर समटाइम्स वी माइट हैव अप डाउन इन द मंथ्स sometimes, but like it's all agreed, like we just don't like कि भाई हम कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होता है. like we ensure कि everything is in line as per the book of records and actual as per, like हम challenge करते हैं एक दूसरे को, you can say that way. admins and us we challenge each other. तो ये एक एक्टिविटी है रिकंसिलिएशन. राइट. इसके अलावा आपने बताया कि बड़ा एक्टिविटी है दैट इज लिक्विडिटी. राइट. लिक्विडिटी. कि फंड अगर डिसाइड कर रहा है कि मुझे ये खरीदना है, तो हमारे उतना कैश अवेलेबल है क्या, या नहीं है तो कहीं से लिया जा सकता है क्या, या कुछ जो भी उनका मैकेनिज्म होगा. तो ये दो है. उसके अलावा और कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही है? सो अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूँ तो फंड पैसे लेना एंड एक्सेट्रा इज आल्सो ओके, बट अगर मेरे फंड में पैसे पड़े हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो मनी मार्केट में हम इन्वेस्ट करके रखेंगे, ताकि मेरे, मतलब लाइक आई शुड अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, राइट, लाइक जस्ट
समझा। बैंक में बट रह ये के कुछ डिसीजन तो नहीं। फंड मैनेजर का है, लेकिन आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, नॉट ऑलवेज फंड मैनेजर्स ये छोटी चीजों में इन्वॉल्व होंगे। मिडिल ऑफिस इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट मतलब कर फाइनेंस सकता के है, साथ लाइज करके ये डिसीजन ले सकता डिसीजन ले लेते हैं कि ओके नो लाइक नाउ वी हैव सम मनी इन द बैंक, लाइक लेट्स इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, सो वी एंड फाइनेंस वर्क टुगेदर एंड वी डू दैट है। ओके, but we kind of stay coordinated with finance and finance kind of stay coordinated in with the PMs. Now this is the setup that I see in the alternatives honestly that I have worked upon, but like समझा when I was in JP at that point of time, like I was directly working with the portfolio managers. So in different समझा firms तो I may तभी, say that the structure will be हाँ different. हाँ, Huh, तो ये भी हमने डिस्कस किया ब्रॉडली एसेट मैनेजमेंट फर्म, इट कैन right, बी एनी नॉर्मल, जैसे इंडिया में भी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है या लाइकवाइज। अब हम ऑल्टरनेटिव के पास आते हैं, तो जैसे आपने बताया कि ऑल्टरनेटिव फंड्स के पास, उनके पास एक फंड नहीं होगा, उनके पास मल्टीपल फंड है। जैसे रियल एस्टेट का एक फंड है, प्राइवेट क्रेडिट का एक फंड है, इंश्योरेंस फंड है, एग्जाम्पल। right, तो अब उन्होंने पैसे क्लाइंट से उठाए, कस्टमर से right, उठाए हैं। right. ओके, इट कैन बी एचएनआईज, Hmm. रिटेल कस्टमर्स भी हो सकते हैं, Retail भी हो सकते हैं depending एचएनआईज upon भी हो the सकते हैं, funds. और इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं। Right, तो इंस्टीट्यूशनल जी कस्टमर का पैसा आ रहा है ये फंड के अंदर, right, राइट। फंड मैनेजर्स है हर एक के लिए अवेलेबल, hmm, मिडिल ऑफिस बैठा हुआ है, right. ओके, और यहाँ पे एक डील का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या हो रहा है? सो डील बेसिकली कैसे होता है कि लाइक नो राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट एशिया मार्केट में भी काफ़ी लाइक ये चीज़ें बूम में है। इफ यू नो समवन वांट्स टू डील मोर अबाउट डील्स एंड लाइक व्हाट ओरिजिनेशन स्टैंड्स फॉर, दे कैन विजिट द वेबसाइट फॉर एग्जांपल ऑफ अपोलो एज वेल एंड सी लाइक यू नो हाउ दे आर फोकसिंग ऑन ओरिजिनेशन। सो व्हेन यू से लाइक ओरिजिनेशन ऑफ अ डील, आपका ये होता है कि आप की जो डील टीम है या फिर अपोलो ही खुद से फॉर एग्जांपल एक डील ओरिजिनेट कर रहा है इस केस में, एंड देन लाइक द डिफरेंट फंड्स will like you know have their share in that particular deal. So समझे, if they decide for example there is a creditor ABC, they want a certain amount of money, okay, समझे, so when they reach out to us like for certain amount of money, or we reach out to them for certain amount of money, in that case the deal team gets involved in the structuring of the deals ki matlab like you know like for example if you're having this deal, so what kind of deal it will it be a revolver credit, will it be a term loan, will it be a delayed draw, will we issue notes on back of that, or will it be a equity sort of, so it like kind of ओके ओके। it's a mix up, yeah. इसमें एक जस्ट पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, तो सो बेसिकली नाउ लेट अस अज्यूम यू हैव 4 फंड्स जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं right, डील में। लेट अस अज्यूम देयर इज अ हॉस्पिटल, okay, इनको पैसा रेज करना है, हम्म, तो वो आपके कंपनी की टीम के पास है जो डील्स टीम है, right, उनको बोल रही मुझे XYZ पैसा चाहिए, तो Right. देन दे विल डिस्कस yeah, क्या किस तरीके से किया जा सकता है। तो 2-3 ऑप्शंस आ गए। hmm, वो चाहता है फंड के पास, दे अग्री ऑन दैट कि चलो Hmm. वी आर गोइंग टू गिव अ रिवॉल्विंग क्रेडिट, right, ओके। right, वो होने के बाद मिडिल ऑफिस टीम इन्वॉल्व हो जाता है, Right. मतलब एक बार डील ऑलमोस्ट फाइनल हो रही है। right, like deal pipeline में if it is moving forward, हाँ, so at that time like you know the middle office team will get involved that okay you know now for example within the 10 business days if we have to fund a particular deal, then middle office will get involved. Middle office will ensure that my particular fund will have that liquidity. Now when I say have that liquidity, डील फंडिंग मल्टीपल करेंसीज में हो सकती है, इट कैन बी इन GBP, यूरो एक्सेट्रा। ओके, तो आई नीड टू इंश्योर कि मैं करंट लेकिन उसको करेक्टली फॉरेन एक्सचेंज करके मैं रखूँ, वो पैसे अवेलेबल करके रखूँ। Okay. अगर मेरे फंड में पैसे नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या इन्वेस्टर से कैपिटल कॉल करने वाले हैं या फिर हम लाइन ऑफ क्रेडिट से बोरो करके हम इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा ROI के लिए, बिकॉज समझा, आई थिंक दैट yes, इज वन yes. ऑफ द कंसेप्ट इन काया। सो हाँ। लाइक यू नो दैट वे इट बट ये इज मिडिल ऑफिस डिसीजन लेता है क्या? नो, सो मिडिल ऑफिस सजेस्ट करता है, ओके, ओके। फाइनल डिसीजन फाइनेंस डील टीम के साथ मिलके करते हैं, डेस्क के साथ मिलके करते हैं कि ओके यू नो लाइक हाउ वी वांट टू फंक्शन, बिकॉज एट द एंड वी आर आंसरेबल टू इन्वेस्टर्स, राइट। सो हम फंड के बेटरमेंट में ही परफॉर्म करेंगे वो चीज़। अगर पैसे है, हाँ, मिडिल ऑफिस क्या डिसाइड करेगा कि अगर मेरे पास पैसे है देन मैं सब कुछ कर लूंगी खुद के हिसाब से, बिकॉज आई नो कि समझा। माई फंड हैज मनी, लाइक वेदर आई हैव सफिशिएंट बाइंग पावर। अगर मैं PB यूज कर रही हूँ, वेदर माई फंड इज हैविंग सफिशिएंट बाइंग पावर फॉर टू फंड दैट डील, yes, okay, then fine. अगर मेरे पास कस्टडी है, सो मेरे पास कस्टडी में सफिशिएंट बैलेंसेस है टू फंड दैट डील, ओके फाइन। अगर मुझे मूव करना है अक्रॉस अकाउंट्स, बिकॉज लाइक इट्स नॉट दैट आई विल हैव 2 अकाउंट्स फॉर अ यू नो लाइक $1 million फंड, राइट। आई विल हैव मल्टीपल अकाउंट्स, सो मैं उसको मूव करके इंश्योर करके वो Okay. करती हूँ। देन फाइनल, सो इन मिडिल ऑफिस टीम ऑनेस्टली वी हैव अ क्वार्टर बैकिंग सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो फिनोमेना। सो हमारे पास जो भी डील्स आती है उसको एक पर्सन ना क्वार्टर बैक करता है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल क्वार्टरबैक का मतलब क्वार्टर बैकिंग होती है कि आप एंड टू एंड डेस्क के डील टीम के साथ कोऑर्डिनेट करोगे ये डील को क्लोज करने के लिए फ्रॉम मिडिल ऑफिस पर्सपेक्टिव, ओके, ओके। ओके, सो व्हेन आई से दैट कि आप सब कुछ देखोगे, आप हर एक फंड ओनर्स, बिकॉज बहुत सारे फंड्स है और हमारी मिडिल ऑफिस टीम बहुत बड़ी है, तो डिफरेंट फंड ओनर्स
होते हैं हर एक फंड के, तो राइट। आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बोलोगे कि सब में पैसे है ना, बोलेंगे हाँ हाँ है, बिकॉज आप अकेले कितने फंड्स में जाके चेक करोगे। बराबर, हाँ सो हाँ। वो फंड ओनर्स आपको बोलेंगे हाँ है, ठीक है, कहाँ से पैसे जाने चाहिए वो बता देंगे आपको, ठीक है, सफिशिएंट 5 बिजनेस दिन के पहले मैं आपको नोटिस दे दूंगा तो आप पैसे दे पाओगे, बोलते हैं हाँ ठीक है। तो मैं एज अ लीड, मतलब बिकॉज आई एम क्वार्टर बैकिंग, आई विल इंश्योर कि मैं सबके वायर्स मैं सबमिट करूंगी एक्चुअल में, हाँ, कि वायर्स पैसा ट्रांसफर होने वाला एग्जैक्टली है। ओके, ट्रांसफर करने के लिए वायर्स जो होते हैं वो मैं सबमिट करूंगी पोर्टल पे, इंटरेस्टिंग, ओके। एंड देन मैं पोर्टल पे सेटल भेज दिया, उसका मतलब ये नहीं कि ओके माय वर्क इज डन, आई विल इंश्योर दैट मेरे बैंक्स, हर एक फंड के बैंक से पैसे बाहर गए हैं, दैट इज नंबर 1। वेरिफिकेशन हुआ। एग्जैक्टली। Okay. आफ्टर दैट, मतलब कस्टडी से मुझे डेबिट दिख रहा है या पीवी से मुझे डेबिट दिख रहा है, मैं लाइज करूंगी जब तक नहीं हो रहा है वो। उसके बाद मेरा काम है कि मैं एजेंट अगर इन्वॉल्व है या फिर डायरेक्ट काउंटर पार्टी इन्वॉल्व है, तो मैं उनके साथ लाइज करूंगी तुमको पैसे आए हैं क्या। ओके। सो वो बोलेंगे हाँ आ गए हैं, पैसे आ गए हैं, ओके फाइन, लाइक The मिडिल deal ऑफिस कैन complete हुआ है टेक, basically। एग्जैक्टली। सो पैसे पर्सपेक्टिव से डील कंप्लीट हुआ है, बट देन लाइक अगर Documentation नोट्स होगा। है या फिर कुछ भी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बुकिंग भी, तो मेरे सिस्टम में बुकिंग्स तो करवाना पड़ेगा कि ये कैसा टाइप ऑफ है, तो उसका सेटअप करवाना, उसकी बुकिंग्स करवाना भी मिडिल ऑफिस करता है, ऐसे इंटरेस्टिंग। टाइप ऑफ। इसमें ना 2-3 चीजें आपने बोली, जैसे हाँ। रिवॉल्विंग क्रेडिट हो, राइट फॉर द ऑडियंस, जो जिस तरीके से डेट, अभी हम डेट के बारे में थोड़ा Right. बात करें, क्या क्या टाइप ऑफ डेट होता है उसका, कर एक एक एग्जांपल आप दे सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई टॉक अबाउट डेट्स, तो काफी सारे मतलब स्ट्रक्चर्ड नोट भी, इफ आई कैन कंसीडर इट एज डेट, वी हैव रिवॉल्विंग क्रेडिट आल्सो। रिवॉल्विंग क्रेडिट क्रेडिट कार्ड लोन जैसा होता है, जैसे आप ड्रॉ करते रहते वैसा। देन यू हैव तो डिलेड मतलब ड्रॉ। सब, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल आया, उसने हाँ। बोला मुझे हाँ। 100 करोड़ रुपए चाहिए, राइट। तो पहले आप उसको इमीडिएटली 100 करोड़ नहीं दे रहे हो। नहीं, हर एक फंड का ना एक पर्टिकुलर कमिटमेंट होता है, टोटल उनका कमिटमेंट समझ, होता है, ठीक है। ओके तो ओके। उसके हिसाब से वो ड्रॉ करते हैं, फिर वो पे ऑफ भी कर देते हैं, तो वापस उतना ही हो जाता है जैसे हम अच्छा, क्रेडिट कार्ड में तो करते 100 हैं। करोड़ मिले उनको, हाँ। लेकिन 5 फंड ने उनको 20 हाँ। 20 करोड़ हाँ। रुपए 100 दिए। हाँ, सबका अब- प्रोराटा अलग होता हाँ, है, अब उसमें पोर्शन अलग होता है। परफेक्ट, हाँ, उसमें से लेकिन अब इन्होंने यूज किया सपोज 30 करोड़, हम्म। और फिर दे हैव टू रीप्लान, अगर उनको पूरा 100 करोड़ वापस चाहिए तो दे हैव टू फर्स्ट पे 30 करोड़, राइट, देन ओनली right, दे विल गिव। right. दिस इज वन रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग। एक और टर्म देन है यू हैव टर्म लोन आल्सो, व्हिच इज अ प्योर लोन जैसा। लोन जैसा वर्क करता है। कैपिटल कॉल जो बोला, मतलब कैपिटल कॉल, सो एज इन लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास काफी सारे एसपीवीज होते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एसपीवीज, सो हम लोग है ना, द थिंग इज दैट कि व्हेन यू आर लाइक अ बिग एसेट मैनेजमेंट फर्म, काफी बार ना आप काफी एसपीवीज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, ओके, लाइक यू डोंट इन्वेस्ट डायरेक्टली, एंड एसपीवी फर्दर इन्वेस्ट करती है इन्वेस्टमेंट में, वो उसका शेयर लेती है, तो वो एक काइंड ऑफ लाइक आई वुड से ब्लॉक बन जाता है कि पता नहीं चलता कि इन्वेस्टर्स कौन है, एंड देन एक्चुअली एसपीवी होल्ड करती है वो इन्वेस्टमेंट, एंड एसपीवी के थ्रू आपको पैसे मिल जाते हैं। सो दैट इज अ लाइक गुड वे ऑफ लाइक स्ट्रक्चरिंग अ पर्टिकुलर डील। बट इफ आई टॉक अबाउट एसपीवी, सो अगर एसपीवी के थ्रू होता है तब आपके कैप कॉल्स इशू कर दिए जाते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव को कैप कॉल क्यों बोलते हैं, बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट कमिट किया है कि मैं पर्टिकुलर एसपीवी में फॉर दिस डील फंडिंग, फॉर एग्जांपल मैं 30 मिलियन दूंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा फंड है, तो मैंने, मेरे पास अभी उन्होंने बोला कि अभी 5 मिलियन दे दो, तो आई एम गिविंग देम 5 मिलियन, देन दे विल फर्दर इन्वेस्ट इट, ओके, नाउ आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट, जो भी मेरा जो भी अग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से। नाउ पोस्ट दैट व्हेन आई एम गिविंग दैट मनी, उसके बाद दे कैन इशू अनदर कैपिटल कॉल दैट गाइस आई वांट लाइक अनदर 5 मिलियन, so I can give, so they can ask in any time frame that is agreed upon, honestly, but like this works upon, this goes on, so this is also a like quite day to day part of middle office function in general. तो जस्ट मैं इसको और थोड़ा सिंपल करके ऑडियंस के लिए, जो मुझे समझा, यू जस्ट करेक्ट मी। सो देयर इज अ हॉस्पिटल हु नीड्स मनी, ओके, देयर आर 5 फंड्स, एक एसपीवी क्रिएट किया गया है, ये 5 फंड उसमें पैसा डालेंगे, लेकिन पहले उन्होंने सिर्फ कमिट किया कि वी विल गिव यू दिस इज मनी, राइट। जैसे ही डील आया, द एसपीवी हैज अग्रीड कि हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो सबसे पैसा मंगवा रहा है, ओके, शायद पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगे, थोड़ा पैसा मंगवाया, ये डील हो गया। सपोज एक और डील आ गई और फिर रिमेनिंग पैसे में से कुछ उन्होंने और मंगाया, तो ये कैपिटल कॉल चलता रहेगा, कैपिटल कॉल चलता रहेगा जब तक उनका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि डील आती है, ऑनेस्टली काफी बार ना कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग काफी वेयर हाउसेस में, सीएलओ साइट्स में भी, मतलब लाइक काफी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो उनका फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कुछ और चीजों में भी होता है, शायद वो कुछ परचेज करने के लिए ले रहे हैं, मे बी, ठीक है, या फिर मतलब फॉर एग्जांपल आई थिंक लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब इंश्योरेंस साइड पे भी काफी वर्क करता है, लेकिन दे आर परचेसिंग समथिंग, ओके, एंड देन like through that they will pay off the money because they need wholesome capital, so that is why we are committing to that. So all that is the perspective. समझा। So this is very interesting, तो कैपिटल कॉल वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मिडिल ऑफिस लिक्विडिटी भी देख रहा है, रिकंसिलिएशन भी देखता है, स्ट्रक्चरिंग भी देख रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, किस तरीके से स्ट्रक्चर होने वाला है,
मतलब कितने SPVs क्रिएट होंगे, कौन So कौन we से kind हैं? of work closely with the controllers. So controllers काफी सारा like coordination करते हैं deal team के साथ. Middle हम्म, office तक information pass on होती है, but like being part of middle office, we ensure that we are understanding what is going on and how that particular deal is structured. Okay, so like we don't really do structuring. हमको information आ ही जाती है, then we understand and then we fund it और accordingly. स्ट्रक्चरिंग कंट्रोलर्स टीम कर रही है. Right. These are कंट्रोलर्स टीम finance मतलब controller. एक्चुअली हाँ, सो एक्चुअली डील टीम ही करती है, बट वो फाइनेंस के साथ वर्क करके करते हैं, वैसे होता ओके ओके, समझा. ओके, ठीक है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है. है. नाउ फॉर द ऑडियंस जो शायद अपना करियर बनाना चाहती है इन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस एंड ऑल ऑफ दैट, तो व्हाट की स्किल सेट्स यू नीड टू सक्सीड, अगर आप मिडिल ऑफिस देखो या Right. फिर ओवरऑल अल्टरनेटिव स्पेस? Okay. So honestly, like for any role, I think Okay. the major part for anyone to succeed is knowledge. Okay, because I think that the more you get into it, because like sir, you would agree because you are like you are yourself a professor. So from that perspective, like I think कि जितना knowledge का कुआं उतना deep है ना, कि आप जितना घुसोगे ना उतना you will excel. So I think like if people want to get into finance or if people want to get into AMC alternative, I think it's very important for people to choose their career as in like the role right, because आप जो roles choose करते हैं ना आपके career में, वो आपका define करता है काफी चीजें, because like that will help you to navigate or open a different horizon. For example, like sometimes you don't have choice, like like things come as a surprise, like you take it and it's fine. Right. But if you really have a choice, like if you have like given 2-3 interviews and you are like know that this is the role I want to target into, always research about that particular role. Okay. Try to understand कि उसका आगे क्या impact होने वाला है. For example, अगर मैं एक organization में interview दे रहे हैं अगर, तो उससे आगे आपके कितने कितने lines open हो सकते हैं, वहाँ के लोग कहाँ कहाँ पे काम करते हैं. So Okay, that very is a like interesting. really good concept people should follow when they are looking out a career in a particular firm. And I think even I learned with time, honestly, like initially हम ऐसे होते हैं कि ठीक है आ रहा है तो हम ले लेते, which is good, like always good. In initial years you should take it as how it comes, but eventually you should also think कि मेरा ये रोल मुझे कहाँ navigate करके जा रहा है, मेरा broader goal क्या है, मतलब क्या मेरा broader goal मुझे ops में रहना है या फिर मुझे middle office में रहना है, या मेरा broader goal शायद finance में है, या फिर मेरा broader goal actually marketing में है, मतलब काफी सारी चीजें होती है, तो you will like then decide कि how you want to like go about it. So it's Okay. very good to have a bit of clarity, number one, about the role, and a bit of knowledge is also important in that case. Okay. Yeah. And generally corporate में अगर आपको succeed होना है, ये मैं थोड़ा सा अलग पूछ रहा हूँ, तो कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? Honestly, I think मुझे ऐसा लगता है कि sense of ownership, okay, and taking on the responsibility is very important. लोगों को या इन जनरल अगर आप आपके घर पे भी बात करें, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चीज़ों की, लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस, राइट? सो नंबर वन, सेंस ऑफ ओनरशिप. अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आप वो काम इंश्योर करोगे कि मैं एंड टू एंड करूंगा, एंड आपको नहीं भी आ रहा है, इट्स ओके, आप पूछ के करो, बट आप कर रहे हो, ठीक है? तो यू गेट दैट like like people will trust you always in that case. Right. I know that like if I give this work to this person, even if he or she doesn't know, they will get their work done. So that is one understanding. That's what I feel is very very important, because काफी बार कैसा होता है कि like काफी लोगों को काम दे दिया जाता है पर वो कंप्लीट नहीं कर पाते, they are like I'm not able to navigate how I do this. Okay, fine, you ask. Okay, so it's always good to ask questions in that. और अभी आप क्या कर रहे हो, राइट? तो ये एक्सप्लिसिटली क्यों, बिकॉज आप अल्टरनेटिव इंडस्ट्री में हो और उसमें आपको ग्रो करना है, राइट? तो एक सर्टिफिकेशन है जो हेल्प करता है. आई थिंक honestly, when I first went through the Kaya curriculum, it is so much relatable to my day to day. Okay. And I think that like when you are doing something which is like very much relatable to your day to day, and like you are actually working upon that, आप काफी relate कर पाते हो चीजों से, and that way में आपका concept understanding भी और strong होता है, because you are actually working upon such stuff. So because like Kaya focuses a lot more specifically on alternatives, तो उसने काफी चीजें वैसी कवर की है जो एक्चुअल में रियल लाइफ में हो रही है, एंड आई रियली अप्रिशिएट Kaya. Kaya curriculum is actually really good in that case. So like if people who want to get into alternatives, I think Kaya is the best thing that they would be they should be looking out for, because yeah, it offers a great curriculum. वंडरफुल. आई मीन थैंक यू मेघना, मतलब ये कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करेगा ऑडियंस को, बिकॉज मिडिल ऑफिस पे हमने अभी तक ज़्यादा तो पॉडकास्ट किया नहीं है इन डिटेल,
कि क्या एक्टिविटी होती है, और एक दो अलग पर्सपेक्टिव देखा विद रिस्पेक्ट टू असेट मैनेजमेंट एंड ऑल्टरनेटिव. सो रियली दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस. एंड वील हैव अ क्विक क्या क्या बोलते हैं, Rapid fire. rapid fire. Yes. So this is going to be a quick rapid fire. Okay, one skill students must master for asset management. Coordination. 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 Super coordination. Okay. One book or resources for beginners in investment operations. Kaya. Okay, Kaya. Okay. Key habit for success in middle office roles. Sense of ownership, as I mentioned. ठीक है. One mistake to avoid in finance operations. Not to communicate when you are stuck, like you're not communicating to people, and you are assuming things. Like I think that is like very common. Like you should not assume, you should ask questions. Okay. Top networking tip for aspiring finance professional. I think it never hurts to say hello when you are in canteen, or like whether you like your colleagues are there in the breakout. Simply say hello. Try to understand what they do into day to day. If you're working with someone via email, and if you see face to face, you like stay in touch with them, or like if not stay in touch with them, talk to them. I think like that goes a long way, and it enhances relationship in that. Wonderful. Favorite tool or method for managing multiple tasks? Can I say Excel? I think Excel is really good, honestly. Okay. And also I think like there are these focus in computer, you have these like focus sessions that you can like Okay. keep yourself focused for 20 minutes, 30 minutes. So yeah, you can do that way. Okay, interesting. One mindset shift for thriving in fast-paced finance career. So I think it is very important to always look into what you can do apart from BAU. Okay, like you should Okay. not be stuck in BAU. You should also see like what are the different areas. For example, we have AI now, so how you can get your things moving fast, how you can learn new tools like AI, Power BI, and all these things, or ChatGPT to enhance your work. I think that is important. Perfect. Again, thank you very much for taking out time. This conversation is going to be really helpful for all the students again. Yeah, thank you, sir. Thank you Thank for you. having me.